हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डिफिनीशन क्या है, कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानेंगे कि दिया गया सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है या फिर कंपाउंड है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? जैसे कि लास्ट वीडियो में अभी आपको बताया कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा वहाँ पे कि वह सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल तथा दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो एंड बोथ आर कनेक्टेड विद द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सेम यहाँ पर भी वह सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो तथा अनदर सबऑर्डिनेट क्लॉज हो एंड बोथ आर कनेक्टेड विद द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, या टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस आर कंबाइंड विद द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो द सेंटेंस डिफिनीशन की बात करेंगे तो द सेंटेंस इन विच contains one principal clause and another one or more than one subordinate clause and the both clauses are combined with subordinating conjunction is called complex called complex sentence। ठीक है, the sentence which contains one principal clause and another one or more than one subordinate clause and both clauses are connected या are combined with the subordinating conjunction is called complex sentence। ये आपका complex sentence का definition है। वह सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और दूसरा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा और दोनों जो क्लॉज होंगे वह किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे, तो वह आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम श्योर I am sure that he will come if you help me help me, I will
help you. If you help me, I will help you. When he came to me, I was sleeping. When he came to me, I was sleeping. The star which is very hot is known as sun. देखिए ये एग्जाम्पल है. I am sure that he will come. If you help me, I will help you. When he came to me, I was sleeping. The star which is very hot is known as sun. सबसे पहले इसे हम क्लास में डिफाइन करते हैं. दिस इज योर वन क्लास and this is another clutch. This is one clutch and this is another clutch, and both clutches are connected with the word that, which is called conjunction, This is principal and this is subordinate. Okay, since the both clauses are connected with the that is a subordinating conjunction. याद रखिएगा that आपका एक subordinating conjunction है, इसलिए ये आपका complex sentence है. If you help me, यदि तुम मेरी सहायता करोगे, I will help you, तो मैं भी आपकी सहायता करूंगा. If you help me, देखिए this is one clutch and this is another clutch, and both clutches are connected with the word if. So this is conjunction, and if is a subordinating conjunction. If is a subordinating conjunction, so this is subordinate clutch and this is principal clutch. ठीक है, this is principal clutch. So this sentence is also called complex sentence. Okay, definition, जिसमें एक principal clutch हो, subordinate clutch हो और जुड़े किससे हो, subordinating conjunction से, तो वो आपका complex sentence होगा. प्रिंसिपल क्लच है, सबऑर्डिनेट क्लच है, दोनों कनेक्टेड है इफ नामक एक कंजक्शन से, एंड इफ इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सो दिस सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ओके, व्हेन ही केम टू मी आई वाज स्लीपिंग, जब वह मेरे पास आया मैं सो रहा था. जब वह मेरे पास आया मैं सो रहा था. देखिए, he came to me, this is one clutch, I was sleeping, this is another clutch. When he came to me, and when is a word which is called conjunction. He came to me, clutch, I was sleeping, this is another clutch, this is the principal clutch,
and this is subordinate clause. Since when is a subordinating conjunction, so this sentence is also called complex sentence because the both clauses are connected with the conjunction when, and when is a subordinating conjunction, so this is called complex sentence. Is it clear? Okay. The star which is very hot is known as the sun. The star which is very hot, देखिए इसमें the star is known as the sun. This is one clause. And is very hot. This is another clause. And the both are connected with the word which. So this is called conjunction. ठीक है? So this is called the conjunction. अब since which is a subordinating conjunction, which subordinating conjunction है, so this is subordinate clause and the star is known as, this is principal clause. ठीक है? ये the star is known as the sun. The star is known as sun. Principal clause is very hot. Subordinate clause, and both clause are connected with the word which is subordinating conjunction. So this sentence is also called complex sentence. इसलिए इस sentence को भी हम complex sentence कहेंगे. ठीक है? Any doubt? देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस में सिर्फ डिफरेंस अगर है तो वह कंजक्शन का है. अगर दोनों क्लाजेज या दो क्लाजेज हैं, सेंटेंस में दो क्लाजेज होंगे, प्रिंसिपल क्लाज का होना कंफर्म है. अगर दोनों क्लाजेज कोऑर्डिनेटिंग से जुड़ जाता है तो कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन करेगा. अगर कॉम्प्लेक्स से जुड़ता है, अगर सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ता है तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है? इफ एनी डाउट यू आस्क मी, एनी क्वेश्चंस. अगर आपको कहीं पर भी एग्जाम्पल में डिफिनेशन में कहीं प्रॉब्लम हो रही हो, ना समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं या फिर आप मैसेज के थ्रू भी मुझे बता सकते हैं कि सर यहाँ पे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, एक बार अगेन आप रिपीट कर दीजिए तो मैं फिर से आपको बस समझा दूंगा, बता दूंगा. तो ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स. ठीक है? सेंटेंस पूरी तरह से हमने प्लस सेंटेंस का जो भी क्लासिफिकेशन था उसको डिफाइन कर दिया, उसके एग्जाम्पल भी बता दिया, सारी चीज़ों को समझा दिया. इन सेंटेंस के हर एक पॉइंट को आप बहुत बारीकी से समझ लीजिएगा. अगला टॉपिक जो हमारा है वो हम क्लॉज. जैसे क्लॉज ख़त्म हो जाएगा तो क्लॉज के तुरंत बाद आपका टॉपिक मैं शुरू करूँगा. आपका सिलेबस जो है क्लॉज, इसके पहले आपके 11th इंग्लिश में आपकी क्लास सिलेबस था, लेकिन कोविड-19 के थ्रू या कोविड-19 की वजह से इस टॉपिक को, क्लॉज को एलिमिनेट किया है, डिलीट किया है. ठीक है? तो लेकिन जो आपका नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन है उसको आपको रखा हुआ है. और ट्रांसफॉर्मेशन टोटली डिपेंड ऑन द सेंटेंस, क्लॉज एंड द कंजक्शन. ट्रांसफॉर्मेशन का जो टोटल जो थीम है वह क्लॉज पे ही डिपेंड है. तो बिना क्लॉज पढ़े आप सोचेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ लें तो फिर ये आपको समझ में ही नहीं आएगा. ठीक है? तो इसलिए मैं क्लास को भी पढ़ाऊँगा थोड़े से समय में ही लेकर, 1 या 2 वीडियो, 2 या 3 वीडियो में मैं क्लास को डिफाइन करूँगा. ठीक है? थैंक यू.